हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो अज आप करन जा रहे हैं पावर इन एसी सर्किट दा पावर फैक्टर। सो आप लास्ट टाइम डायग्राम की सी जिंदे आप इंडक्टर डोमीनेटिंग सर्किट बनाया सीगा। सो इंडक्टर डोमीनेटिंग दे आ वैल्यू आप वी एल की ले ली सी, ठीक है, वोल्टेज तो आ वी सी है, वी सी इज़ लैस दैन वी एल। तो अपने को नैट वोल्टेज जी है इस डायरेक्शन च आई सी वी नोट तो आई नोट की जी डायरेक्शन है। तो फाई इज़ द एंगल बिटवीन वी नोट एंड आई नोट। सो आप इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ आई जी है एट एनी टाइम वो लिखा आई नोट साइन ओमेगा टी, तो वी की वैल्यू लिखा वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, क्योंकि फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सो दिस इज वी नोट, this vector, okay, phasor vector, and this is I naught. So there is a phase difference of phi between V naught and I naught. Okay, so this is the instantaneous value of V and this is the instantaneous value of I at any time t. Now power which is instantaneous power and it is written as Pi and it is given by product of voltage and current at any time t. So this becomes out to be V naught sin omega t plus phi and sin omega t. So Pi, which is instantaneous power, this is power dissipated at any time t, this is equal to V naught, here it is I naught sin omega t. So V naught I naught sin omega t. So sin A plus B, it becomes sin A cos B plus cos A sin B. Sin A cos B plus cos A sin B multiplied by sin omega t. We have already write it I naught there. So sin omega t is the other factor. Okay, so here we are, Pi is equal to V naught I naught sin omega t multiplied by sin omega t, it becomes sin square omega t and multiplied by cos phi. Now here it is cos omega t sin omega t sin phi, thus we can write it as sin omega t cos omega t sin phi. Okay, so now multiply this factor by 2 and divide by 2, it will become another relation identity. So we write it as cos phi okay. So sin square omega t can be written as 1 minus cos 2 omega t divided by 2. Okay, so sin square omega t can be written as this. So plus now this as the common factor. So this is the common factor of both the factors. You can write it as this. Okay, so this is the common factor. So plus 2 sin omega t cos omega t को multiplied by sin phi divided by 2. ठीक है, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया हमने। सो 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी
it will become sine 2 omega t, and cos phi by 2 will be the other factor. So here we write it as a smaller bracket. Okay, so now vi equal to v naught sin omega t plus phi and I naught sin omega t. It will become v naught I naught sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b. Now this sin omega t we have written it here, so this becomes sin square omega t into cos phi, and sin omega t cos omega t sin phi, sin omega t cos omega t sin phi. So this sin square omega t becomes 1 minus cos 2 omega t by 2, and cos phi is written here. Multiply by this factor by 2 and divide by 2. So this will become sin 2 omega t. We are going to write it here. So Pi comes out to be V naught I naught cos phi one minus cos 2 omega t divided by 2 plus sin 2 omega t divided by 2 sin phi. Okay. हाँ जी, देखो ना अपने को पी आई कितना बन गया देखो. सो पी आई आप लिख लिया, ठीक है. सो जी हम आप एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है. सो एवरेज पावर में आप लिखांगे पी दे नाल. सो पी जिहड़ा है वो पी आई का इंटैग्रल 0 to t पी आई डी टी डिवाइड बाय टी हो जाएगा, ठीक है. सो आप पी आई की वैल्यू इस इक्वेशन पुट करांगे तो अपने को पी दिस इज कॉल्ड एवरेज पावर ओवर कंप्लीट साइकिल. सो आप पी कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज एवरेज पावर ओवर कंप्लीट साइकिल. सो दिस कम्स आउट टू बी देखो 1 बाय टी आप बाहर लिख देंगे इंटैग्रल 0 to t आ सारा फैक्टर आप लिख देंगे बी नॉट आई नॉट cos phi 1 minus cos 2 omega t by 2 dt, okay, plus sin 2 omega t by 2 sin phi dt, ठीक है. So, or you can write dt as common. You can write it as dt is the due to this integral we have written as dt. लिखता आप देखो आ सारा फैक्टर लिख के इतने ब्रैकेट वड्डी आप कर देते हैं, ठीक है. नाल dt जिहड़ा सो ये वैल्यू बन गई. सो इनू आप सिंपलीफाई करना देखो हमें P इज इक्वल टू 1 बाय टी वी नोट आई नोट कॉमन आ गया, ठीक है. इंटैग्रल चो 0 to t. सो फस्ट फैक्टर की आप गल करांगे. सो फस्ट फैक्टर देखो आ जिहड़ा है इन्हां फैक्टर जिहड़ा है इहदे विच cos phi है, cos phi by 2 लिख लीए तो अपने को नाल आ गया 1 minus cos 2 omega t. इहदे नाल आपां dt लिख दिंदे हां, ठीक है. इत्थे आपां ब्रैकेट लगा लैंदे वड्डी. हुण आ फैक्टर आपां लिखण लगे हां प्लस sin phi by 2 आ sin phi by 2 लिख लिया आप. तो इंटैग्रल दे विच अपने कोल आ जाएगा 0 to t
ठीक है। आ देखो इंटैगरल जो आप इस फैक्टर नाल लिखता पहला, फिर आ फैक्टर नाल आप अलग लिख लगे, इनका कॉमन फैक्टर आप बाहर निकाल लिया, तो साइन 2 ओमेगा टी डी टी, ये कंप्लीट ब्रैकेट जी है ये आप इतने बंद कर दी। ठीक है, हम देखो P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाय टी, इसमें सॉल्व करांगे पहला आप कोस 5/2 है, कोस 5/2 बाहर लिख लो क्योंकि कॉन्स्टेंट है, टी तो इंडिपेंडेंट है इसलिए कॉन्स्टेंट है। तो अपने कोल इंटैगरल दे विच 1 dt आ जाएगा पहले। ठीक है, सो 1 dt माइनस इंटैगरल 0 टू t cos 2 ओमेगा t dt। ठीक है, ये आ गया। हुण आपां प्लस आ फैक्टर देखांगे, इस फैक्टर दे विच प्लस साइन 5/2, तो इनू सिंपलीफाई करिए आप इस फैक्टर को, देखो साइन 2 ओमेगा टी का इंटैगरल कितना है माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2 बिटवीन द लिमिट्स 0 टू टी, आ होल ब्रैकेट जी है ये बंद होती है। ठीक है, सो फर्दर देखो P comes up to be V naught I naught by T cos 5/2, ओके, इतना इंटैगरल T हो जाएगा, लिमिट्स 0 टू T हो जाएंगी। कोस 2 ओमेगा टी का इंटैगरल जोड़ा है वो साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा हो जाएगा बिटवीन द लिमिट्स 0 टू टी। ठीक है, आ सोल्व कर लिया आप इतने, आ सोल्व करके आप इतने लिख लिया। हम आ फैक्टर जोड़ा इनू देखो ध्यान नाल, प्लस साइन 5/2, ओके, नैगेटिव माइनस 1/2 ओमेगा जोड़ा है इनू भी आप बाहर लिख दिए तो इतने माइनस हो जाएगा 4 ओमेगा आप बड़े लिख लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर 4 ओमेगा लिख दिए, नेगेटिव साइन एंड 4 ओमेगा। नाउ साइन 2 ओमेगा टी और कोस 2 ओमेगा टी बिटवीन द लिमिट्स 0 टू टी, ये रह गया अपने को। ठीक है, बाकी फैक्टर आप बाहर लिख लिया, जो टी तो इंडिपेंडेंट है वो बाहर लिख सकते हैं। टी वाले फैक्टर जोड़े है ब्रैकेट च रह गए, तो ये ब्रैकेट जी है ये बंद हो। ठीक है, फर्दर देखो P comes out to be V naught I naught divided by T cos 5/2, it is T minus 0, ओके। हुण आपां ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व करनियां ने, इधर ध्यान नाल देखो साइन ओमेगा की वैल्यू होंदी 2π/t, सो आप लिखांगे 1/2 ओमेगा लिख दिए बाहर। ठीक है, तो ब्रैकेट च अपने को आ गया साइन 2 × 2π कैपिटल T पुट कर दिए। ठीक है, अब बेटा टी है थे ओमेगा की वैल्यू 2π/t होंगी है। ठीक है, तो माइनस साइन 0, ये ब्रैकेट जी है सॉल्व होगी। ठीक है, हम आप आ फैक्टर देखो इनू ध्यान नाल, इनका आप माइनस साइन 5/4 ओमेगा ये लिखा है, तो ब्रैकेट की आ गया देखो कोस 2 ओमेगा टी माइनस कोस 0। ठीक है, ये सारी ब्रैकेट अपने को इतने आप वड्डी ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है,
सो ये सिंपलीफाई होगी। हुण ये सारा फैक्टर आप सिंपलीफाई करांगे। देखो हाँ जी, देखो पी की वैल्यू जी है कितने बराबर हो जाएगी, वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाय टी। फर्स्ट फैक्टर देखो जो है होगा कोस फाई बाय 2 इंटू टी। सो कोस फाई डिवाइड बाय 2 और टी आ गया। आ फैक्टर देखो साइन, here it is sin 4 pi, here t will cancel with t, sin 4 pi minus sin 0, sin 4 pi की वैल्यू 0 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। सो ये फैक्टर जोड़ा है वो 0 हो जाएगा। इतने देखो इस ब्रैकेट के कोस 2 ओमेगा टी माइनस कोस 0 है। सो कोस 2 ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी आप लिख दिए जे, ठीक है। सो 2 पाई बाय टी, सो ये भी कोस 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। टी ना टी कैंसल हो जाएगा। कोस 4 पाई जोड़ा है वो कोस 0 के बराबर ही होता है, तो उनकी वैल्यू 1 होती है। सो 1 माइनस 1 आ फैक्टर भी 0 हो जाएंगे, ठीक है। सो ये फैक्टर जोड़ा है इन आप इस तरह लिख सकते हैं। मैं चलो एक बार लिख देना, माइनस साइन फाई डिवाइड बाय 4 ओमेगा, ठीक है। नाल अपने को इतने आप लिख देना है माइनस 0 तो नाल आ गया माइनस साइन फाई और 4 ओमेगा कोस 2 इंटू 2 पाई बाय टी इंटू टी माइनस कोस 0, ठीक है। सो एक ब्रैकेट जी अपनी बंद होगी। सो P comes out to be V naught I naught divided by T and cos phi by 2 into T माइनस आ खत्म हो गया। इतने देखो टी ना टी कैंसल हो जाएगा, कोस 4 पाई की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सो माइनस साइन फाई ओवर 4 ओमेगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 0 हो गया। सो ये फैक्टर भी 0 हो गया, छड़ देंगे तो अपने को पी की वैल्यू जी है वी नॉट आई नॉट बाय टी कोस फाई बाय 2 इंटू टी रह जाएगी, टी ना टी कैंसल हो जाएगा, तो पी कम्स आउट टू बी वी नॉट आई नॉट कोस फाई बाय 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड ओवर अ कंप्लीट साइकिल। सो इन आप फर्दर देखो लिखांगे P इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 एंड आई नॉट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 कोस फाई। So this is RMS value of voltage and this is RMS value of current. We have already done it. So P comes up to be VRMS IRMS into cos phi. Okay. So this is called virtual power. This is called power factor and this value is called true power. This is called true power. देखो P is called true power, VRMS IRMS is called apparent power or virtual power, and this cos phi is called power factor. So therefore we can write it as true power is equal to virtual power into power factor. Okay. हाँ जी, नेक्स्ट देखो कि है स्पेशल केसेस आप करन जा रहे हैं रिलेटेड। सो पहले क्या एसी सर्किट हैविंग रजिस्टर ओनली। सो जिंदे विच कल्ला रजिस्टर होएगा एसी सर्किट दे विच। सो आप उत्थे देखो कि लिखांगे, आपां नूं पता है कि उहदे विच वोल्टेज ते करंट, सो वोल्टेज ते करंट सेम डायरेक्शन च हुंदे है, ठीक है ना, दोनों इस डायरेक्शन च हुंदे है ते फाई दी वैल्यू जिहड़ी है वो 0 हुंदी है, ठीक है। सो एसी सर्किट हैविंग रजिस्टर ओनली दे केस दे विच आपां कि लिखांगे, देखो P is equal to VRMS IRMS into cos phi थां ते 0 लिख देंगे, ठीक है, बिकॉज phi इक्वल टू 0
when we have just resistor in the circuit. So it become P is equal to Vrms Irms. Cos 0 is 1. So therefore true power is equal to virtual power. In case of circuit having resistor only. Okay. So next is AC circuit having inductor only. So where there is an inductor, इंडक्टर के केस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ π/2 ਨਾਲ। ਸੋ φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ φ = 90 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ φ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ cos 90 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ Vrms Irms cos 0 cos 90 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। cos 90 डिग्री। ठीक है। सो cos 90 is 0, so power is equal to 0 मीनस ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Vrms Irms ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਡਿਸੀਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि कैपेसिटर के केस जो आप देखो AC सर्किट हैविंग इंडक्टर ओनली दे विच आपां नूं पता है भी वोल्टेज अगे निकल जाती है तो AC सर्किट हैविंग कैपेसिटर ओनली के केस वोल्टेज पिछे रह जाती है बाय फैक्टर π/2। उस केस भी Vrms Irms cos 90 जिहड़ा है वो 0 ही आ जाएगा। सो भी आप लिख देंगे। चलो इत्थे AC सर्किट थर्ड केस है AC circuit having capacitor only. So P की वैल्यू कितनी आ जाएगी Vrms Irms cos 90 डिग्री। सो ये भी 0 हो जाएगी। सो नो पावर dissipated in case of capacitor and inductor and there is a power loss in case of resistor। हाँ जी देखो नैक्सट है पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट। अपन पता है कि P इज इक्वल टू Vrms Irms इंटू cos φ होंगे। आप Vrms Irms बड़े चले गए cos φ की वैल्यू जी है P डिवाइड बाय Vrms Irms होगी। सो दिस Vrms Irms कैन बी रिटन एज दिस इज वर्चुअल पावर। इनू आप लिख सकते हैं Vrms। ठीक है। Vrms ते Irms का प्रोडक्ट जोड़ा है उन्होंने Prms लिख सकते हैं वर्चुअल पावर। ਹੁਣ देखो cos φ की जी मैक्सिमम वैल्यू है वह 1 होंगी है तो यह हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो फर्दर देखो जे केस आप कला रजिस्टर देखिए इन केस ऑफ रजिस्टर रजिस्टर ओनली आप देखा सीगा कि रजिस्टर के केस के वर्चुअल पावर तो ट्रू पावर इक्वल होंगे हैं तो cos φ की वैल्यू वन हो जाएगी क्योंकि आ दोनों बराबर हो जाएंगे P बिकॉज वर्चुअल पावर एंड ट्रू पावर आर इक्वल। सो cos φ इज 1 इन केस ऑफ रजिस्टर ओनली। ठीक है। दूसरा इन केस ऑफ इंडक्टर सर्किट को कला इंडक्टर हो गया। ठीक है ना। इन केस ऑफ सर्किट हैविंग इंडक्टर ओनली φ जो है वो 0 के बराबर है। इन केस ऑफ कैपेसिटर ओनली उत्थे भी cos φ जो है वो 0 के बराबर है जो कल इंडक्टर या कला कैपेसिटर लगा। ठीक है ना। प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है उस cos φ जो पावर फैक्टर है उनकी वैल्यू 0 आती है। हुण देखो नैक्सट है जे अपने कोल RL सर्किट है RL सर्किट होएगा तो आप इंपीडेंस ट्रायंगल बनावांगे
ठीक है। इधर आर है, आ वैल्यू एल ओमेगा की हो जाएगी, तो आ जो Z है वो स्केयर रूट आर स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एल स्केयर हो जाएगा। तो कोस फाई की वैल्यू दिस डिवाइड बाय दिस हो जाएगी। तो कोस फाई जो है पावर फैक्टर की वैल्यू आर डिवाइड बाय स्केयर रूट आर स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एल स्केयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर एल सर्किट जे सर्किट दे विच इंडक्टर ते रजिस्टर दो चीज़ां लगियां ने, कैपेसिटर नहीं लगा। फिर जो सर्किट दे विच रजिस्टर ते कैपेसिटर लगे आ दो चीज़ां, इंडक्टर नहीं लगा, उस केस दे विच आपां नूं पता है कि ये थल्ले नूं चला जाएगा। उस केस च इस तरह का देखो यह बनेगा, ठीक है ना। कैपेसिटर डोमिनेटिंग फाई थल्ले डाउनवर्ड चला जाएगा, तो अपने कोल आ वैल्यू जी है 1/C ओमेगा आ जाएगी, ठीक है। तो आ वैल्यू आर की आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने को आ जाएगी आर स्केयर प्लस 1/C स्केयर ओमेगा स्केयर स्केयर रूट, ठीक है। सो कोस फाई की वैल्यू की बन जाएगी अपने को आर स्केयर प्लस 1/C स्केयर ओमेगा स्केयर, ठीक है। सो कोस फाई जो वो अपने को आर डिवाइड बाय, ठीक है ना, इस आर डिवाइड बाय दिस आ जाएगा, आर डिवाइड बाय आर स्केयर 1+C स्केयर ओमेगा स्केयर, ओके। हाँ जी, देखो इन केस ऑफ LCR सर्किट कोस फाई की वैल्यू आर बाय जेड हो जाएगी। सो जेड की वैल्यू की है आर स्केयर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा इन द स्केयर, स्केयर सम अंडरवुड है, ठीक है। सो आ वैल्यू जी है कोस फाई की हो जाएगी आर बाय जेड इन केस ऑफ LCR सर्किट। अपने को पावर फैक्टर आर डिवाइड बाय आर स्केयर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा होल स्केयर हो जाएगा। हाँ जी, देखो आप वाटलेस करंट ते वाटफुल करंट बारे गल करते हैं। हम अपन पता है P इज इक्वल टू VRMS IRMS ते कोस फाई है, इन्हों प्रोडक्ट है। फाई की है फेज डिफरेंस बिटवीन VRMS ते IRMS, क्योंकि VRMS की है V नोट की स्केयर रूट 2 डिवाइड करके वैल्यू सी, ये आई नोट की स्केयर रूट 2 डिवाइड करके वैल्यू जी आई सी। सो V नोट ते आई नोट की डायरेक्शन च दोनों ने, ठीक है। इस करके इन्हों फेस डिफरेंस फाइव है। तो आप जो डायग्राम च देखिए तो IRMS इस पासे है तो VRMS फाइव का एंगल बनाएगी, इस पासे VRMS की वैल्यू है। हम देखो IRMS का कंपोनेंट जोड़ा है आप इनकी कंपोनेंट की फॉर्म च लिखिए तो फाइव एंगल बना रही है जिस पासे, इस पासे इनका IRMS कोस फाइव कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन के इनका IRMS कोस फाइव कंपोनेंट आ जाएगा। तो फरदर इनके 90 डिग्री ते आप रिजोल्व कर रहे हैं कंपोनेंट फॉर्म के इस चीज़ को इनके इधर जिस नाल फाइव एंगल बना रहा उधर कोस फाइव कंपोनेंट आ गया, उनके 90 डिग्री ते इधर इनका आ जाएगा IRMS साइन फाइव, ठीक है। इस पासे साइन फाइव कंपोनेंट आ जाएगा। हम देखो VRMS की डायरेक्शन के इनका कंपोनेंट इन्हों का आपस एंगल जो 0 का बनया, तो VRMS की डायरेक्शन नाल इसका एंगल जो 90 डिग्री बन रहा, ठीक है ना। हम देखो जे आप देखो आ जो कंपोनेंट है IRMS का कंपोनेंट जो VRMS की डायरेक्शन है IRMS कोस फाइव, इनके करके पावर जो कंज्यूम की गल करा उन्होंने आप लिखा P डैश, वो कितना आ जाएगा देखो VRMS IRMS कोस फाइव, ठीक है। एक कंपोनेंट हो गया अगला। तो अपने को आ फैक्टर जो नाल आप मल्टीप्लाई करा इधर एंगल 0, इस करके आप लिखा कोस 0, ठीक है ना। सो अपने को दिस इंटू दिस सीगा, सो आप दिस इंटू इनके डायरेक्शन कोस 0 है, इस करके कोस 0 इतने लगाया। सो P डैश अपने को आ गया दिस इज पावर कंज्यूम्ड इन द डायरेक्शन ऑफ VRMS ड्यू टू दिस कंपोनेंट IRMS कोस फाइव। सो कोस 0 वन होता है, सो VRMS IRMS कोस फाइव हो गया, ठीक है। सो ये एक वैल्यू आ गई, इनू आप इस करंट में वाटफुल करंट कहांगे। हम आप इस डायरेक्शन पावर कंज्यूम्ड की गल करा, देखो वो कितनी आती है P डबल डैश लिखा उन्होंने आप।
सो ये कितनी आ जाएगी VRMS IRMS sin फाई ते नाल cos 90 आ जाएगा। ठीक है, सो cos जेड़ा थर्ड वैल्यू है देखो दिस इंटू दिस आ वैल्यू जी आ अपने को IRMS sin फाई 90 डिग्री एंगल है ना दोनों के विच आ देखो एंगल 90 डिग्री है इस करके cos 90 लिखता नाल आप cos फाई थां ते। सो cos 90 जीरो होंदा है तो ये पावर जी है ये जीरो आ गई। सो ये वाटलैस करंट बन गया जेड़ा आ वैल्यू है IRMS sin फाई क्योंकि इहदे करके पावर कंज्यूम जी जीरो आई। सो दिस वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड वाटलैस करंट and this value of current is called watt full current. Okay, so IRMS cos phi is called watt full current and IRMS sin phi is called wattless current.